जी अस्सलाम वालेकुम। Hello. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Thank you very much. Welcome, Aisha. And we have Usama with us. And Aisha, you have joined. Probably we should start the class now. My voice is clear, easily understandable. Is it loud enough? Should we start the class? जी sir. जी. Right. Thank you very much. Uh, as you people know, that in yesterday class we were just giving you an overall of the course contents and the learning outcomes, and we were trying to make a strategy. That's how we shall carry on this entire course. So that has successfully been done till yesterday's class. Now, right from today, we shall try to follow the course contents, and we shall try to discuss, the very first course content and the very first learning outcome of the course. Right, better if you could have, the course contents in front of you. If the college is already shared, otherwise I can send you an email at the WhatsApp. And better if you could print out the course contents, and you could have the course contents with you whenever we are checking the class. So this must be shown that we are following the contents right way. So uh, Sir, आप ग्रुप में शेयर कर दें I can slides. share. Yeah, I can share the book. No problem. So, right, I've shared my screen. Are you people seeing this? जी. Yeah. In fact, there's a book, Essentials of Marketing, right? And that is the recommended source that is available. Let me admit the Hanan's name. Right, this book. These are the contents, and these are very similar to the course contents. Fine, let's start it from. Now, the chapter 1 is marketing dynamics, and if I refer you to the to the marketing contents, the essentials of marketing contents. That is definition of the marketing concept. The first content that we are going to study is definition and the marketing concept. So, what is the definition of marketing? That's important point to begin with, right? So, marketing defined many ways in this book, and marketing is something that is observable, right? That is a science we interact with on everyday basis, right? So again, what do people think? What is marketing in your mind, right? Because some of you that has already studied a marketing course, and probably most of you, you're quite newer to this course. You might have not gone through any course that was related to marketing, right? So just what is your raw understanding? So common man understanding, the concept in your mind is what is marketing. Then we'll go towards the literal and the a bookish definition and bookish concept of the marketing. So let me check one by one. Isha, let me please know what is marketing according to you, right? सर आई थिंक कि कस्टमर्स की जो डिमांड्स वगैरह होती हैं Hmm. उनको मतलब माइंड में रख के Hmm. तो उस तरह मतलब
क्या करना है? करना उसको कस्टमर की डिमांड्स को ध्यान में रख के क्या करेंगे हम? मतलब चीजें सेल करना वगैरह. That's right. So Isha is talking about the customer demands and selling of the products and services to the customers. That is marketing, right? That is very close. That's very close. Uh, जी. Usama, what do you think? What is marketing? Usama, where are you? Hello. Probably Usama is not with us, maybe physically. Hanan. Hanan, how are you? And how about, the marketing concept or the definition of marketing according to you, if you're listening? Launching a product in the market and advertising it. Hanan is talking about two things. He's saying that launching the product in the market, that's one thing, and advertising of that product in the market, that's another thing. So this okay, that's closer to the marketing concept. Exact, that's not definition. Definition is something that is broader in general because that has to cover all the concepts of that subject. So definition is always very comprehensive, very compact, and very general in nature, so that it could touch, all aspects and all elements of the course. So, anyways, who is with us more? Aisha. Aisha is here. Aisha, what do you think? What is marketing according to you? And I think it's a process to promote or sell a product or a new trend, and to innovate things, to begin new trends, और उसमें सब advertisement भी आता है और सब publicity भी आती है और वो सारा जो procedure होता है कि इसको promotion, marketing, advertisement, तो I think वो सब का एक सब को मिला के I think it's marketing. All right, Aisha is talking very generally. She's talking about the new trends, the products, the publicity, the advertisement, the market, everything. So, I mean, your concepts are again closer to the definition. So, let's study what is, the definition of marketing that's written in one of your recommended resources, right? So, what marketing means? Here are two popular and widely accepted definitions of marketing. One is, Chartered Institute of Marketing, CIM, that's known as, that is an institute. That is England's or UK's Chartered Institute of Marketing, CIM, that works in marketing. That's known as one of the prestigious institutes of the marketing. And second one is from America, that's known as American Marketing Associations, and that is commonly abbreviated as AMA, right? So CIM and AMA, how do these two institutions define marketing? Let's have a look on that, and then we shall discuss in that detail. So marketing is the management process responsible for identifying, anticipating, and satisfying customer requirements profitably. That's very concise, very precise, very short, yet complete definition that's given by CIM, Chartered Institute of Marketing, and this definition was given in 2001. So that's very older concept. This is 2020. This is 20 years old definition. It's been 2 decades, right, of this definition. So what this definition is talking about, let's try to unfold this definition, right? So it is a management process. One thing, it is a management process. So we come to know here that marketing is a management process. Okay, fine. ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, चीजों को मैनेज करने का एक प्रोसेस है. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक अमल होता है, राइट? जो स्टैटिक नहीं होता, जो डायनामिक होता है, जो काम करता रहता है, जो चलता रहता है, जो एक काम है जो वाकया होता रहता है, राइट? That works on, or that takes place, that is process. Or ये management process है, we have to manage the different things. Okay, right. What we have to manage, in fact, that is identifying, anticipating, and satisfying the customer requirements profitably. हमने करना क्या? That's very important concept.
वो कहता है कि जी आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कस्टमर को, मेरे कंज्यूमर को, मेरी टारगेट मार्केट को चाहिए क्या, उसको आइडेंटिफाई करना है आपने। फिर वो कहता है एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, उसको फोरसी कर लेना, उस चीज को एस्टिमेट कर लेना, उस चीज का अंदाजा लगा लेना, राइट, कि इनफैक्ट उसको आइडेंटिफाई कर लेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करंट नीड्स ऑफ योर कंज्यूमर्स, एंटिसिपेटिंग मीन योर फ्यूचर नीड्स। मुझे देखना है कि कस्टमर की जरूरत आज ये है, एंड टुमारो कस्टमर माइट नीड दीज थिंग्स आल्सो, राइट। तो आप उसको एंटिसिपेट कर लेते हो कि कंज्यूमर की नीड्स किस तरफ जा रही हैं, और मैंने कंज्यूमर की नीड्स को कितना डीपली और कितना राइटली अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और जो कस्टमर चाह रहा है, जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसको सेटिस्फाई करें प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली, सो लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन हियर, प्रॉफिटेबली मींस व्हाट, एनीबॉडी? कि हमने इन चीज़ों को प्रॉफिटेबली मीट करना है, इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना है, तो ये प्रॉफिटेबली से मतलब क्या है? तो जो हम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी हम उस पे लगा रहे हैं, जो भी हमारा रेवेन्यू है, उस पे हमें फायदा हो। जितनी भी हमने मार्केटिंग का प्रमोशन या किसी भी चीज में उसका सब इन्वेस्ट किया, टाइम हो या वो पैसा हो, जो भी हो, वर्कफोर्स हो, तो वो उस पे हमें प्रॉफिट हो, सो फायदा हो एटलीस्ट। आप ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से बात करिए, कंपनी कॉन्टेक्स्ट से बात करिए, जेन्युइनली जेन्युइनली। राइट। राइट जी, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये डेफिनेशन जो है ये कस्टमर कॉन्टेक्स्ट से तो है ही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट एंड satisfy the customer requirements, and the word profitably that represents here the company's context, the company's perspective, क्योंकि of course हम कस्टमर तो बहुत खुश हो जाएगा ना, हम उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लें, उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर दें और उसको जाके बहुत सस्ता प्रोडक्ट दे दें और उसको जाके मुफ्त में प्रोडक्ट दे दें, ही वुड बी हैप्पी, राइट। वो कहेगा यार ये कंपनी इज वेरी नाइस, राइट, कि इसने मेरी नीड को बड़े अच्छे तरह से आइडेंटिफाई किया और इसने जो प्रोडक्ट बना के दिया, दैट इज गुड, दैट रियली सूट्स टू माय रिक्वायरमेंट्स, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज द कंपनी इज गिविंग अवे दिस प्रोडक्ट टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ऑफ कोर्स कंपनीज कैन नॉट डू दैट, राइट। सो ये एक सर कॉन्सेप्ट सर है। जी जी जी। सर यहाँ पे सर हम फोकस ग्रुप्स भी यूज कर सकते हैं ना, फोकस ग्रुप भी यहाँ पे यूज हो सकता है ना? फोकस ग्रुप से मुराद क्या है उसामा? सर फोकस ग्रुप से मीन के आप जो आपने चीज अपनी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी है, आप पहले 10-12 लोगों से पूछते हो कि आप ये चीज कैसी है, अलग अलग लोगों से पूछ के फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, तो यहाँ पे ये आ सकता है? नहीं, वो यहाँ पे ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि नाउ नाउ वी डीलिंग डीलिंग विद द डेफिनेशन। वो तो एक पूरा प्रोसेस है ना, हम मार्केट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। हम उसके लिए मार्केट में निकल पड़े, हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, लोगों को टेस्ट करवाया, लोगों से पूछा, लोगों से पसंद करवाया, या उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चनर्स बनाए, कुछ सर्वेज किए, लोगों के जी घरों सर, में ये गए, लोगों को बुलाया, हाँ जी, जी उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई, सो दैट इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस, राइट। वो तो ऑफ कोर्स जब भी एक प्रोडक्ट बनता है उससे पीछे एक इंटेंसिव मार्केट रिसर्च होती है, एक इंटेंसिव एक सर्वेज होते हैं जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा, ऑफ कोर्स अब देखें ना, आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान से उठ के इंडिया में जाएंगे, वहाँ अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। आप इंडिया से उठ के बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ बांग्लादेशी पीपल को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो लोग कैसे हैं, उनकी नीड्स कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, right, उनकी languages क्या है, उनका environment क्या है, so we have to study the market or the company that is involved in manufacturing and production that has to do all these things, in individual markets wherever they go, wherever they really wish to launch a product. Well, that's a background process, but we are generally discussing the concept of definition and overall marketing concept here. Right, thank you. So let's look at the second definition, that is marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchange and satisfy individual and organizational objectives. Right. So have a look on this definition. I'm giving you a few seconds. 10 seconds to read this definition and to build understanding with this definition. You have 10 seconds only. Right after 10 seconds, we'll discuss it again.
So your 10 seconds are over. इस definition को कौन पढ़ के सुनाएगा? I wish somebody could read this definition for all of us. Let me check who can read this. Isha. Isha, would you please read this definition from your mobile phone or from your laptop? Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create, exchange, and satisfy individual and organizational objectives. AMA 1985. इसका मतलब क्या है? सही वो कोई थी अमेरिकन, I forgot. Right, this marketing was presented by American Marketing Association, this definition, and that was presented in 1985. ये उससे भी एक पुरानी definition है, पहले वाली definition से भी ये पुराना definition है, but it is more comprehensive, it is more complete. Right, इसमें उसने क्या किया? उसने marketing process को, उसके planning process को थोड़ा सा ज़्यादा unfold करके बताने की और समझाने की कोशिश की है, ये जो Americans हैं, right, उन्होंने जो definition बनाया. अब इसमें क्या है? उनका उसने भी कहा था marketing is a management process. उसने कहा marketing is a process of planning. They was talking about the management process. Now Americans they're talking about the planning process, right? अब होता क्या है? हम पता है एक हम लोग समझते क्या हैं कि एक वो बंदा जो बाहर गली में खड़ा है, जो बाजार में खड़ा है और उसने कुछ चीज़ें पकड़ी हुई हैं, वो 5-5 रुपए की 10-10 रुपए की एक सेल लगा के खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जी आए 10-10 रुपए में ये सारी चीज़ें ले जाएं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं. इनफैक्ट वो मार्केटिंग नहीं कर रहा. मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्रोसेस है, वो एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो एक प्लानिंग प्रोसेस है. और वो बंदा तो पीछे से एक स्टॉक उठाया हुआ है, उसने 3 रुपए की एक चीज़ उठाई हुई है और वो बाजार में खड़ा 5 रुपए की बेच रहा है. यू नो दैट इन्वॉल्व्स यू नो अ लिटिल थिंकिंग कि जी मैंने 3 रुपए में उठाई है, मैं 5 रुपए में बेच रहा हूँ, मैंने 2 रुपए प्रॉफिट कमाना है. एंड ही इज थिंकिंग नथिंग मोर देन दिस, राइट? उसको और कुछ नहीं पता, ना तो उसने बीबीए किया हुआ है, ना उसने एमबीए किया हुआ है, ना उसने मार्केटिंग पढ़ी है, ना कोई बिजनेस ग्रेजुएट है, ना उसने कोई मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ है, ना उसको पता है कि मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है, ना उसको पता है कि एएमए क्या कहती है, सीआईएम क्या कहती है, उसको कुछ नहीं पता, राइट? एंड वी जनरली बिलीव कि वो मार्केटिंग कर रहा है. वो मार्केटिंग का एक बहुत छोटा सा पोर्शन कर रहा है, उसका एक बहुत छोटा सा फंक्शन कर रहा है, राइट? वो सेलिंग हो सकती है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो सकता है, मुमकिन है जो प्रोडक्ट दैट इज सेलिंग, I mean, that is good for the customer needs, but he does not know what is he doing in fact, right? अब इस definition को देखिए, वो कहता है कि process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution. अब उसने 3-4 चीजें बता दी हैं, right? कि किसी चीज को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, कॉन्सेप्शन से मुराद उसको कंसीव करना, कॉन्सेप्ट से है, और उसकी प्राइसिंग और उसकी प्रमोशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट्स टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग मिक्स, इन फैक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स. जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम मार्केटिंग मिक्स को भी बड़ी डिटेल में देख रहे होंगे, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एन एक्सचेंज. एक्सचेंज एक डिफरेंट वर्ड आया है यहाँ पे कि यार हम क्या करने जा रहे हैं कि हम आइडियाज को, गुड्स को, सर्विसेज को, उसको हम प्लान करते हैं, प्राइस करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उससे होता क्या है कि हम एक एक्सचेंज प्रोसेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. इट्स वेरी क्लियरली रिटन हियर कि व्हाट वी वांट टू अचीव इन लॉन्गर रन, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर नीड्स और इंडिविजुअल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. हम दोनों, या जो उसने वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी का यूज किया था ना, प्रॉफिटेबली, सो दैट इज further unfolded here, that is more explained here in detail. So the satisfaction of the individual and organizational objectives. तो दोनों घरों को खुश होना है. One side is the company, second side is the individual or the consumers. Both they must be happy with this exchange process, right? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू लेनी है, उसने अपनी वैल्यू लेनी है, right? But exchange, you know, exchange of values basically, you know, आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं, जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, तो आप यू नो एक्सचेंज कर रहे होते हैं. यू आर गिविंग मनी टू द शॉपकीपर, राइट, एंड यू आर गेटिंग प्रोडक्ट. दैट इज एन एक्सचेंज. तो उससे क्या होता है कि उसको उसका वैल्यू मिल जाता है बिकॉज उसने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, बनाई है, प्रमोट किया है, प्राइस किया है, डिलीवर किया है,
अवेलेबल बनाया है, आपके डोर स्टेप पे आपको वो चीज़ मिल रही है, तो उसने अपने सारे एक्सपेंडिचर्स को मीट करना है और उसको वैल्यू चाहिए और आपको लेके वो चीज़ें मिलती हैं. सो दीज वर द बेसिक डेफिनेशंस. अब थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में जाके देखते हैं. ये उन चीज़ों को ही एक्सप्लेन कर रहा है जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं. वो कहता है मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस. अब मैनेजमेंट आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं, एलोकेशन है, दिस एंड दैट. So marketing is about giving customers what they want. Of course, जो आपको चाहिए आपको वो मिलेगा तो आप खुश होंगे. अगर आपकी needs के related चीज़ें बहुत ज़्यादा that cannot hit the target rightly, तो it means you won't be happy with your products. जैसे ही आप जैसे एक साबुन लेके आते हैं, आप उस साबुन को यूज़ करते हैं, that does not suit your skin tone to skin requirement. आप एक शैम्पू लेके आते हैं, ठीक है, आप उसको एक हफ्ता यूज़ करते हैं, वो आपका हेयर फॉल ठीक नहीं कर पा रहा, वो आपका डैंड्रफ ठीक नहीं कर पा रहा, वो जो आपकी एक स्किन की खास रिक्वायरमेंट है वो उसको सूट नहीं करता, तो आप उसको यू वुड सिंपली डिसकंटिन्यू टू यूज़ दैट शैम्पू एंड यू वुड नेवर बाय दैट द शैम्पू अगेन. आप कोई भी परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, गारमेंट्स, फुटवेयर, the phone, anything you buy, and later on you feel that this is not okay with me or I'm not okay with this product, तो आप उसको नहीं buy करते. So if the company that is rightly identifying what customer really needs, तो उसके लिए फिर अपना product sell करना और एक अच्छा relationship customer के साथ बनाना, that's easier. Marketing identifies and anticipates the customer requirements. Of course, it's important. अब मुझे ये बताइए कि जब आप एक शॉपिंग मॉल पे जाते हैं बीइंग कंज्यूमर और आप कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, आप शैम्पू बाय करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ तो 10 शैम्पू के ब्रांड्स हैं और एक के अंदर आगे उसके 10 वेरिएंट्स पड़े हुए हैं. मतलब शैम्पू है दैट इज़ फॉर एग्जांपल पैंटीन, दैट इज पैंटीन, उसके अंदर वो 4 तरह के पैंटीन पड़े होंगे. अगर आप डव की बात करते हैं तो डव के आगे 6 शैम्पूस पड़े होंगे. अगर आप सनसिल्क की बात करते हैं तो 10 पड़े होंगे. अगर आप लॉरियल पे चले जाते हैं तो उसके आगे 7 पड़े होंगे. तो व्हाई इज देयर अ क्वाइट वाइडर एंड लॉन्ग रेंज ऑफ शैम्पूस? एंड ऑफ द डे हमने करना क्या है यार, बाल ही धोने हैं ना, सर ही धोना है ना, तो ये 150 शैम्पू क्या कर रहा है वहाँ रैक में पड़ा हुआ? मुझे कोई बंदा बता सकता है? सर ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग जो किया ना वो इतनी वास्ट की है कि उन्होंने अपनी हर प्रोडक्ट मार्केट में दी है कि हेयर फॉल का कोई और है, डैंड्रफ का कोई और है, अगर आपने बाल लंबे करने हैं उसका कोई और है. हर एक कैटेगरी का एक एक शैम्पू बना के मार्केट में दिया हुआ है. अच्छा, गुड. एनी अदर आंसर? इनके अलावा जो कोई और बताना चाहें कि वो 150 शैम्पू रैक्स पे पड़ा हुआ क्या कर रहा है? आयशा? सर वो प्रमोशनल स्टंट भी तो होता है ना कि किसी भी तरफ लगा दो, किसी को भी, जैसे उसामा ने बोला कि हर किसी का एक एक वो मकसद के लिए वो शैम्पू है और डिफरेंट कंपनीज भी है, उनका कंपटीशन भी आपस में होता है इसलिए. Right. Competition is another story. No doubt, different shampoo manufacturing companies, brands, they are competing with each other. Right. I admit, I do not deny this concept. The problem is, marketing identifies and anticipates the customer requirements. ये है उसका आंसर, क्योंकि कंपनी उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रही है जो आपकी रिक्वायरमेंट है. बिकॉज कंपनीज दे जनरली बिलीव customers, they are very different in their personal needs, right? Usama different है किसी और लड़के से, कोई दूसरा कंज्यूमर डिफरेंट है तीसरे से. ईशा का एक अपना रिक्वायरमेंट है, आयशा का एक अपना रिक्वायरमेंट है, और इस तरीके से जब हम एक बड़ी कंज्यूमर की मार्केट को देख रहे होते हैं तो हम ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे लोगों की नीड्स बहुत डिफरेंट होती हैं. तो जब आपने स्टडी किया बालों को तो पता चला कि यार जो जितने लोग हैं उनकी नीड्स बड़ी डिफरेंट है, उनके बालों का टेक्सचर बड़ा डिफरेंट है, उनका स्किन टोन बड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, राइट, वो डिफरेंट डाइट लेते हैं, वो डिफरेंट एज के हैं, वो डिफरेंट प्रोफेशंस के हैं, वो डिफरेंट लाइफस्टाइल रखने वाले लोग हैं, राइट, और उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट है. तो आपने एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया कि मुझे पे जो शैम्पू बनाना है वो एक नहीं बनाना, वो 10 तरह के बनाने हैं कि
कोई भी कस्टमर का नीड ऐसा न रह जाए जिसको मेरा प्रोडक्ट एड्रेस ना कर पाए, राइट। तो आपने एंटिसिपेट कर लिया ना कि बाल, बालों के आपने लोगों को जब स्टडी करना शुरू किया तो लोगों से पूछना शुरू किया, तो हमें पता चला कि यार ये तो बहुत तरह के शैम्पूज चाहिए लोगों को, तो बहुत तरह के स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तरह के बालों के प्रॉब्लम है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे हेल्दी बाल होने चाहिए, ठीक है जी, वो शाइन करने चाहिए जी, ठीक है, उनका वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए बालों का, कुछ ने कहा जी वो लंबे बड़े जल्दी हो जाएं, कुछ ने कहा जी वो सिल्की होने चाहिए, कुछ ने कहा जी वो मजबूत होने चाहिए, किसी ने कहा जी मेरी स्किन के अंदर डैंड्रफ हो जाता है, किसी ने कहा कि जी मेरी स्किन बड़ी वो फ्लेकी सी हो जाती है, किसी ने कहा कि जी मैं ये चाहता हूँ, मैंने स्टाइलिंग करनी है, वो इस तरीके से बाल हो जाएं, किसी ने कहा जी मैं शैम्पू करूँ तो मेरे बाल स्ट्रेट भी हो जाएं और वो इजी मैनेजेबल हो जाएं। तो पता चला यार देयर आर व्हाट मोर नीड्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो आपने फिर 150 तरह के शैम्पू बना के वहाँ रख दिया। सो वन aspect was because you are in the market and you are competing with different brands. That was one of the concepts. And second was because you are addressing the wider consumer markets, and when you really studied the market you came to know that there are many needs, many requirements of customers, many expectations of customers from the product. That's why आपने बहुत सारे shampoos आपको बनाने पड़ गए। Okay, going to marketing fulfills the customer requirements profitably. Profitability we have already discussed, because ये नहीं हो सकता कि मैं शैम्पू बना के लोगों में मुफ्त बांटना शुरू कर दूं और कस्टमर खुश होते जाएं। मुझे अकेला कस्टमर को खुश नहीं करना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करना, मुझे ये करना है, आई एडमिट, लेकिन मुझे वो प्रॉफिटेबली करना है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। मार्केटिंग ऑफर्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी डिटेल में थोड़ा सा जाके देख लेते हैं। Pricing, promotion, and distribution of goods, ideas, and services. Of course, that is a marketing process that involves pricing. अब शैम्पू आप लेते हैं वो 210 रुपए के, तो कंपनीज को कैसे पता चला कि ये शैम्पू का बॉटल मैंने 210 रुपए में बेचना है, इससे बड़े वाला पैक मैंने 340 रुपए में बेचना है, और उससे बड़े वाला पैक जो है वो मैंने 5.5 रुपए में बेचना है, फॉर एग्जाम्पल। तो प्रमोशन है, आप टेलीविजन ऑन करते हैं तो वहाँ पहले हेड एंड शोल्डर्स का ऐड आ रहा होता है, आप उसको बंद करते हैं तो पैंटीन आ जाता है, उसको बंद करते हैं तो सनसिल्क आ जाता है, उसको बंद करते हैं तो डव आ जाता है, उसको बंद करते हैं तो लॉरियल आ जाता है, उसको बंद करते हैं तो 6 और शैम्पूस आ जाते हैं, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग। Once you don't promote your product, so how would people come to know about your product? Promotion is important. आपने एक चीज़ बनाई है जो बिकता वही है जो दिखता है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग आर प्रमोशन कि जितना आप अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे लोगों को, बताएंगे लोगों को, उतना आपका प्रोडक्ट का अवेयरनेस होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद कि देयर इज अ चैनल। हेड एंड शोल्डर्स बनता कहीं यूनिलीवर पाकिस्तान उसको बनाता है, एंड दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन कराची। कराची में कहीं यूनिलीवर ने अपना एक प्लांट लगाया होगा, एक प्रोडक्शन साइट होगी जहां वो हेड एंड शोल्डर्स को बैठ के बनाता है। मिलता वो आपको आपके गली बाजार मोहल्ले के नुक्कर के हर उस जनरल स्टोर, छोटे स्टोर से भी आपको हेड एंड शोल्डर्स साशे पैक में या बॉटल पैक में मिल रहा है। सो दैट इज नाइसली डिस्ट्रीब्यूटेड, that is nicely placed, right? So you can comfortably buy that product from your doorstep. So that is the concept of distribution or placement. तो ये सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। अब गाड़ी कहीं बनती है, मिलती है आपको जेल रोड से है, मिलती है आपको कैनाल रोड के शोरूम पे है। मोबाइल फ़ोन बनता कहीं और है, आईफोन की बात करें तो दैट इज़ designed, that was designed in California, there was assembled in China, but that's available, आप उसको ये कचहरी बाजार और डी ग्राउंड पे लोगों ने अपना कर रहे हो, वहाँ से आपको मिल जाता है। तो ये सारा प्रोडक्ट्स कैसे यहाँ आई? रिलेशनशिप मार्केटिंग, दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट हियर। ये एक रिलेशनशिप है जी। ये रिलेशनशिप क्या है, मुझे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। ये आज जाके मार्केटिंग इज रिलेशनशिप, ठीक है। अभी हम एक्सचेंज प्रोसेस की हम बात कर रहे थे ना, रिलेशनशिप आपका। अच्छा चलो रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा डेट करिए, तो क्लास का टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, 40 मिनट्स क्लास इज टू शॉर्ट। रिलेशनशिप मार्केटिंग आपका एक रिलेशन, डू यू फील, अब मुझे ये बताइए, जो आप मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है जिससे आप ये क्लास पढ़ रहे हैं, क्या आपका उस मोबाइल फ़ोन के साथ कोई रिलेशनशिप है या उस कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप है? व्हाट डू यू थिंक? नो सर। क्यों नहीं है? आप अच्छा चलें, आप जो जिस ब्रांड्स के आप जूते पहनते हैं उस ब्रांड के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप सर किस सेंस में, मतलब कि मैं कोई? मैं बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, उसामा, आप सब लोग, मैं सुबह आप जब उठते हैं, जिस 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 सोप से आप बाथ लेते हैं,
जो आपका बाथ सोप है मैं वो आपसे ले लेता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, you when you get up in the morning and you visited your washroom for having a bath, आपको पता चला कि वो साबुन अवेलेबल नहीं है, आपको पता चला कि जो शैम्पू से मैंने अपना सर धोना था वो अवेलेबल नहीं है, राइट? अब वापस आए, जो आपने डेनिम का ट्राउज़र पहनना था वो अवेलेबल नहीं है, जो जूता आपने पहनना था वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना था वो अवेलेबल नहीं है, आपने मोटर बाइक या गाड़ी यूज़ करनी थी वो अवेलेबल नहीं है, राइट? तो ये जो 6-7 ब्रांड्स थे, जो 6-7 कंपनीज थी जो आपके लिए साबुन बनाती थी, जो आपके लिए शैम्पू बनाती थी, जो आपके लिए डेनिम बनाती थी, जो आपके लिए जूता बनाती थी, जो आपके लिए मोबाइल फ़ोन बनाती थी और जो आपके लिए गाड़ी बनाती थी, वो अवेलेबल नहीं है. सो हाउ वुड यू सर्वाइव without all these things? That would be difficult. जी सर, मुश्किल तो होगा सर. Of course, that's very difficult. So all these companies, they have developed the products for you, right? And they have somehow developed a certain relationship with your consumers, right? आप कंज्यूमर्स हैं, वो कंपनी है, आप कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, आप कंपनी के प्रोडक्ट बाय करते हैं, आप वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं, जिस एक्सचेंज की हम बात कर रहे थे. तो दैट्स हाउ यू इन योर कंपनी दिस डूइंग बिजनेस म्यूचुअली. यू आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स, ही इज हैप्पी विद यू. तो ये एक्सचेंज प्रॉफिट, रिलेशनशिप मार्केटिंग ना. आप रिलेशनशिप खराब हो जाएगा जब आपको लगेगा कि यार ये कंपनी मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं बना रही. जब कंपनी को लगेगा ये कस्टमर मेरा प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहा, तो रिलेशनशिप इज डिस्टर्ब. वंस द रिलेशनशिप इज डिस्टर्ब, देयर इज नो लॉन्गर मार्केटिंग. अच्छा चलिए, अब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं. दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज कंज्यूमर हियर, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज एक्सचेंज प्रोसेस. कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं. ये कंज्यूमर है, ये कैश दे रहा है, कैश का फ्लो जा रहा है पेप्सी कंपनी की तरफ. ऑर्गेनाइजेशन इज पेप्सी कंपनी एंड दिस इज यू फॉर एग्जांपल, राइट? एंड पेप्सी कंपनी का एरो इधर को जा रहा है, वो एक स्लिक थर्स्ट. वो क्या कह रहा है कि जी मैं आपकी जो प्यास है, जो पेप्सी पीने वाली जो एक नीड है आपकी, मैं उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, राइट? मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं आपको री एनर्जाइज कर रहा हूँ, मैं आपकी उस प्यास को बुझा रहा हूँ, राइट? और जो एक feeling of satisfaction, feeling of refreshness and feeling of re-energizing yourself after having a soft drink, मैं आपको वो देता हूँ और आप मुझे पैसे देते हैं. That is an exchange process. अगली बात पे आ जाए. ये एक पेशेंट है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देता है. मतलब बाहर यूजुअली लोग वो अपना टैक्सेस और इंश्योरेंस पे करते हैं और उसके अगेंस्ट उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है. हमारे यहाँ चूँकि ऐसा नहीं है, हम वहाँ जाते हैं और काउंटर पे पहले पैसे जमा करवाते हैं, फिर हमें ट्रीटमेंट मिलता है. तो वो कहते हैं जी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हॉस्पिटल को जा रहा है एंड व्हाट इज यू गेटिंग इन रिस्पॉन्स टू दैट, दैट्स योर मेडिकल ट्रीटमेंट. और वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वापस आ रहा होता है. सो दैट इज एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. यू आर हैप्पी, हॉस्पिटल इज हैप्पी. हियर इज स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल you, here is your institute, that is university. You are paying fee to this university, university is giving you an education, right? Usama, बात समझ आ रही है? Yes sir, yes sir. अब ये क्या है? That is relationship, right? आप यूनिवर्सिटी को फी नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी आपको एजुकेशन नहीं देगी. आप यूनिवर्सिटी को फी देते हैं, यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट बन जाते हैं एंड यू गेट एजुकेशन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन. सो दैट एक्सचेंज, दैट इज अगेन अ रिलेशनशिप. दिस इज वॉलंटियर, दिस इज नॉट प्रॉफिट. सो अगेन दिस इज 9:52. Your class time is up. Probably you have to take another class and have to teach another class. So thank you very much for joining, and this is it so far, and we'll carry on this class. Well, thank you very much. Have a nice time. So should I end the meeting? Yes sir, sure sir. Right. Thank you very much. Take care.